सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सेनेट का इजलास जारी है और ऑपोजिशन की जानिब से इस वक्त शोर शराबा किया जा रहा है। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत जारी है। And for the matters incidental thereto, the Foreign Investment Promotion and Protection Bill 2022 be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill, clauses 2 to 16. Let me take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 16. There is no amendment in clause 2 to 16. So I put these clauses before the House as a one question. The question is that clause 2 to 16 do form part of the bill. All those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 2 to 16 stand part of the bill. Schedule 1, there is no amendment in Schedule 1, therefore I will put Schedule 1 before the House. The question is that Schedule 1 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have Schedule 1 stands part of the bill. Schedule 2. There is no amendment in Schedule 2 therefore I will put Schedule 2 before the House. The question is that Schedule 2 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have Schedule 2 stand part of the bill. Schedule 3. There is no amendment in Schedule 3. The question is that Schedule 3 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, Schedule 3 stand part of the bill. Clause 1. We may now take up Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that the Clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. There are only 4 people in no. I think the ayes have Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 39, Honorable Senator Mohammad Azam Nazir Tarar, please move order number 39. Honorable Senator Mohammad Azam Nazir Tarar, please move order number 39. To move that the bill to provide for promotion and protection of certain qualified investments and for matters incidental thereto, the foreign investment promotion and सेनेट इजलास की कार्रवाई आप मुलाहिजा कर रहे हैं और गालिबन अब से कुछ देर पहले कोई बिल्स पेश किए गए हैं जिसके ऊपर वोटिंग करवाई जा रही थी। शोर शराबे में वोटिंग हुई और कुछ क्लॉजेज हैं उनकी मंजूरी दे दी गई। इसी शोर शराबे के दौरान हमारी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। ये कौन सा बिल पेश किया जा रहा है, क्या हो रहा है, उनसे तमाम तफसीलात जानते हैं। नौशीन बताइएगा। ये किन्होंने फेंकी है? नौशीन, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो इस वक्त कार्रवाई क्या हो रही है? शोर शराबा हो रहा है, हम देख रहे हैं, जरा इससे मुतल्लिक तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। नौशीन से हम रब्ता करने की कोशिश करें। सेनेट का इजलास, आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब भी जारी है और इस दौरान हमने देखा कि अपोजिशन अरकान की जानिब से शोर शराबा और हंगामा आराई की गई है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। आज़म स्वाति की गिरफ्तारी, प्रोडक्शन ऑर्डर का इजरा, इमरान खान पर हमले के खिलाफ PTI सेनेटर्स का एहतजाज जारी है और ये इजलास अब मुलतवी कर दिया गया है। PTI सेनेटर्स ने इस दौरान चेयरमैन सेनेट के डेस्क के सामने घेराव भी किया और चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आपके अपने ही प्राइवेट मेंबर्स का दिन है। इस दौरान PTI सेनेटर्स की जानिब से मुसलसल नारेबाजी की जाती रही। अब ये इजलास मुलतवी कर दिया गया। बिल्स की कॉपियां फाड़कर जो चेयरपर्सन है उनकी डेस्क के सामने फेंकी भी गई और अब ये इजलास मुलतवी कर दिया गया है। PTI के सेनेटर्स ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा किया, नारेबाजी की। जिस वक्त ये बिल पेश हो रहा था उस वक्त भरपूर हंगामा किया गया अपोजिशन की जानिब से सेनेट में, लेकिन इस दौरान कुछ कानून साजी पास हो गई है। अब ये इजलास मुलतवी कर दिया गया है। नौशीन,
नौशीन यूसुफ ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है, उनसे इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं। नौशीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई के सेनेटर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने चेयरमैन सेनेट के जो डायस है उसका घेराव किया और वहाँ पे शदीद नारेबाजी की। उनके हाथों में आजम स्वाति के पोस्टर्स थे जिसमें उनकी रिहाई के मुतालबे किए गए थे। लेकिन इसी दौरान जब पीटीआई का शोर शराबा जारी था तो आजम नज़ीर तारर ने खड़े होकर जो है ज़िमनी एजेंडा पेश किया, जिसमें पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और प्रमोशन का बिल जो है जो कि रेकोटिक से मुतालिक है वो बिल शामिल था। इस पर आजम नज़ीर तारर ने इस बिल को पेश किया, जिसको पीटीआई के सेनेटर्स के शोर शराबे के दौरान ही इस बिल की पेश करने की तहरीक पेश की गई। रज़ा रबानी, सेनेटर रज़ा रबानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसके अलावा नसीमा एहसान जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, साहिब जुन्जर जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और गुल बुशरा, इन चारों सेनेटर्स ने हाथ हिला हिला के इस बिल के खिलाफ वोट दिया। लेकिन बिल पेश करने की तहरीक पहले मंजूर हुई और उसके बाद इसी शोर शराबे के दौरान आजम नज़ीर तारर ने जो है वो बिल पेश किया जो कि रेकोटिक से मुतालिक है और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के की प्रमोशन और तहफ़्फ़ुज़ का बिल है। और ऐवान ने इसी शोर शराबे के दौरान ये बिल मंजूर कर लिया। इस बिल के खिलाफ हुकूमती बेंच से ही 4 सेनेटर्स ने वोट दिए, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी के अलावा जो अपोजिशन जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 सेनेटर्स भी हैं। और इस शोर शराबा जो पीटीआई का शोर शराबा जारी ही था कि सेनेट का इजलास जो है जुमेरात 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ये इजलास अब मुलतवी कर दिया गया है जुमेरात तक। आपने तफसीलन अपडेट किया नौशीन यूसुफ, शुक्रिया। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस का मामला, इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ दरखास्त काबिल समात है या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया। महफूज फैसला 15 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरफा फिरोज जकी से। अरफा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, मुख्तलिफ दलाइल जो सामने आए फरीकैन की जानिब से, उससे मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त पर जो वो आज समाअत हुई है और इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ क्या दरख्वास्त काबिल समाअत होगी या नहीं, इस पर एडिशनल सेशन जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुनने के बाद जो है वो आज महफूज फैसला किया था और अब उन्होंने कहा कि ये 15 दिसंबर को 2 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो साद हसन वकील जो है वो आज अदालत के सामने पेश हुए थे और उन्होंने कुछ दलाइल दिए थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि तोशाखाना की रकम से जो सड़क बनाई गई थी, वज़ीर-ए-आज़म को कोई तोहफा मिले तो तोशाखाना में जो जमा करवाना लाजमी होता है। 2018 में कानून आया था कि 20% रकम तोशाखाना में जमा करवा के तोहफा हासिल किया जा सकता है। उन्होंने दलाइल में ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रकम 20% से बढ़ाकर 50% जो वो कर दी थी। ठीक है, अभी फैसला महफूज कर लिया गया है, 15 दिसंबर को सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अरफा। सुई सदर्न गैस कंपनी ने सिंध में गैस लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। सिंध में सुबह 6 ता 9, दोपहर 12 ता 2, शाम 6 ता रात 9 बजे तक गैस मिलेगी। सार्फिन का कहना है कि ये सुई सदर्न की तारीख में सबसे शदीद लोड शेडिंग है। तफसील जानते हैं अली इमरान सैयद से। जी अली। जी, जियो न्यूज़ ने 11 अक्टूबर को ये खबर ब्रेक की थी कि रवा मौसम सरमा सख्त है और 16 आवर की लोड शेडिंग हो सकती है। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है और ये इम्प्लीमेंटेशन हल्के हल्के जैसे सिवियरिटी सर्दी की बढ़ेगी मुख्तलिफ इलाकों में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई है। दूसरी तरफ सुई सदर्न की जो इंतजामिया है गैस का ज़िया या चोरी रोकने में बुरी तरह नाकाम हुई है। उसके लेवल्स बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ रही है। तो एक तरफ गैस ज़ाया या चोरी ज़्यादा हो रही है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग भी ज़्यादा आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। सिंध जो कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, वहाँ शदीद गैस लोड शेडिंग। अली इमरान सैयद, आपने इस बारे में अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान इमरान खान के वकील से 2 सवालात पर वजाहत मांग ली है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अफवाज पाकिस्तान को नैब की दस्तरस से बाहर रखा गया है। अफवाज पाकिस्तान को नैब की दस्तरस से बाहर रखने पर आपकी क्या राय है? सवाल किया कि नैब कानून से अफवाज पाकिस्तान को बाहर रखने की वजूहात क्या हैं? नैब कानून की दस्तरस से तो जजेस भी बाहर नहीं है। जस्टिस मंसूर ने यह भी सवाल किया कि नैब कानून से अफवाज पाकिस्तान को बाहर रखने का यह अमल पीटीआई की नज़र में आईनी है या गैर आईनी? मुंतखब रुकन पार्लियामान से बाहर निकलकर कहे कि फैसला सड़कों पर करूंगा तो क्या ये जमहूरियत है? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ एक्सटेंशन केस में कानूनी खलापुर किया था। असफंदियार वाली केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने तरमीम कलअदम करार दी थी। जस्टिस मंसूर ने इस पर कहा, असफंदियार वाली केस में अदालत ने इंसानी हुकूक के मुनाफी होने पर कानून कलअदम करार दिया था।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि नैब की जिन शिकों पर तरमीम हुई वो बुनियादी हुकूक के खिलाफ नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा नैब कानून में बहुत से सुकून भी थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि नैब कानून में किसी शख्स को महज इल्ज़ाम पर 90 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था। नैब तरामीम मुल्की कानून में पेशरफ्त हैं। ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि नैब कानून पर तरमीम से पहले बहुत तनकीद भी होती रही है। जस्टिस मंसूर ने कहा हुकूमती वकील का मौक़िफ़ है कि नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में हुई। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब कानून में कोई तरामीम अदालती फैसलों की बुनियाद पर नहीं हुई, जिस पर सवाल किया जस्टिस मंसूर ने कि क्या अदालत खुद से तयन करे कि नैब तरामीम से अवाम मुतासर हो रही है। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले के आखिरी रोज़ बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और अपनी पसंद की कुतुब खरीद रहे हैं। तफसील बता रही हैं शव्वाला असलम। जी, जैसे कि एक्सपो सेंटर में जारी बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ हमने देखा कि जहां लोगों की बड़ी तादाद मुतादिद मौज़ूआत पर किताबें ख़रीदने में मसरूफ़ है, वहीं एक ऐसा स्टॉल भी मौजूद है जहां पर ऐसी सहूलत मौजूद है जहां पर कुरान मजीद है और उस पर ट्रेसिंग करवाने के लिए भी यहाँ पर एक सहूलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तालिब इल्म मौजूद हैं जो कि यहाँ पर ट्रेसिंग कर रहे हैं कुरान मजीद में और ये बिल्कुल मुफ्त है। तो अगर हम ये देखें तो इस कुतुब मेले में ना सिर्फ दीगर मौज़ूआत पर किताबें हैं बल्कि बच्चों के लिए और तालिब इल्मों के लिए काफ़ी ऐसी तरबियाती सरगर्मियाँ भी कुछ मुतादिद स्टॉल्स पर मौजूद हैं। हमने जो है ना बहुत सारी किताबें खरीदी हैं, खास करके डॉक्टरों के उसकी ना, क्योंकि मेरे को भी शौक है कि मैं भी बड़ा होकर अपनी ताया की तरह डॉक्टर बनूं। बहुत मज़ा आ गया है, मैंने 3-4 किताबें खरीदी हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने 2 तरह की बुक्स खरीदी हैं, कलरिंग बुक्स, और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। 5 रोज़ा ये बैनुल अक़वामी कुतुब मेला आज अपने ख़िताम को पहुँचेगा और लोगों से भी हमने यहाँ पर बात की। उनका यही कहना था कि कुतुब बीनी का रुझान क्योंकि अब इस डिजिटलाइज दौर में तालिब इल्मों में ख़त्म होता जा रहा है, तो इस तरह के कुतुब मेलों का इनेकाद एक खुशाइन बात है। जी।